Hello students of class 9th, I am Sumit Singh, your mathematics teacher. As you all know that nowadays chapter number 6 lines and angle is going on, and in this chapter we have done up to question number 3 of exercise 6.1. From today we are going to start from question number 4 of this exercise. The question number 4 is, if x plus y equals to w plus z, there is a figure, एक फिगर गिवन है आपको, A O B is a line, there is a ray, the name is OC, and another ray, the name of this point is D. गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.1. What is given? X plus y equals to w plus z. It is given that, this is like question number 1. To prove, what we have to prove? क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है AOB is a line, or in this figure it is given that the name of this angle is x, this is y, the name of this point is z, and this is w. AOB is a line, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमें प्रूफ करना है. मीन्स इन दोनों का सम 180 आना चाहिए, या इन दोनों एंगल्स का सम क्या आना चाहिए? 180 आना चाहिए. प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन, स्टूडेंट्स, as we know, a complete round of a point makes an angle 360 डिग्री. एक पॉइंट के चारों तरफ सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360 होता है. मींस एंगल AOD प्लस एंगल DOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COA, इन सारे एंगल्स का सम क्या होगा? 360 डिग्री. दिस इंप्लाइज एंगल AOD प्लस एंगल DOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COA इक्वल्स टू 360 डिग्री. ओके, द वैल्यू ऑफ AOD, एंगल AOD इज इक्वल्स टू Z, DOB is equals to W, BOC which is equals to X, and COA which is equals to Y is equals to 360 degree. But student, from equation 1 the value of X plus Y is equals to W plus Z. So in place of W plus Z or either X plus Y, we can shift another one. या तो Z plus W की जगह X plus Y लिख सकते हैं, या X plus Y की जगह Z प्लस डब्ल्यू लिख सकते हैं. तो हम क्या करने जा रहे हैं? Z प्लस डब्ल्यू, इस दोनों के सम की जगह क्या लिखने जा रहे हैं? X प्लस वाई प्लस दिस X प्लस वाई एज इट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. बाय विच इक्वेशन? बाय इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y इक्वल्स टू 360 डिग्री. वी कैन टेक कॉमन 2, कॉमन ले सकते हैं 2, देन ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? 2 यहाँ से कॉमन ले लिया x, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. 2 शिफ्ट कर सकते हैं राइट साइड. देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई 360 अपॉन 2 क्या आ जाएगा? 180. जब इन दोनों एंगल का सम क्या आ गया है? 180 आ गया. मीन्स दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. दिस इंप्लाइज AOB इज अ straight line. This is the solution of this question. Now study the question number 5. Student, question number 5 is POQ is a line. POQ एक लाइन गिवन है आपको, POQ एक लाइन है
एंड रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। PQ पर एक रे क्या है? परपेंडिकुलर है। द नेम इज OR। OR रे PQ पर क्या है? परपेंडिकुलर है, मींस एंगल ORQ is equals to angle ORP each 90. OS is another line between rays OP and OR. OS is another ray, एक ray है OS which is lie between the rays OP and OR. रे OP और OR के बीच में एक रे है OS. Then we have to prove this result. What we have to prove in question number 5? To prove क्या करना है? एंगल ROS is equals to half एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये हमें रिजल्ट प्रूफ करना है। Now the proof of this theorem question as RO is perpendicular to PQ। जब RO PQ पर perpendicular है, what is the means? It means that angle ROQ is equals to angle ROP each 90। दोनों क्या होंगे? ये 90 डिग्री होंगे। बट एंगल ROP is divided in two parts। रे ROP को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एंगल ROS एंड एंगल POS। This implies in place of ROQ we can write ROQ, but in place of ROP इस एंगल ROP की जगह हम लिखने जा रहे हैं एंगल ROS प्लस POS। लिख दीजिए ROS प्लस एंगल POS। This is let equation number 1. Now from figure, actually students in this verification we have to prove we need angle SOQ। SOQ की वैल्यू हमें चाहिए, तो फ्रॉम फिगर वी कैन राइट एंगल SOQ इज इक्वल्स टू SOQ दिस पूरा एंगल। ये पूरा एंगल दो पार्ट्स में डिवाइड है, ये वाला एंगल और ये एंगल। द वैल्यू ऑफ दिस एंगल इज ROS प्लस, और इस एंगल की वैल्यू क्या है? ROQ। दिस इंप्लाइज एंगल SOQ इक्वल टू एंगल ROS एज इट इज, और the value of ROQ is equals to ROS plus POS from equation number 1। क्या लिख सकते हैं? एंगल ROS प्लस एंगल POS बाय इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से। देन एंगल SOQ एज इट इज इक्वल टू ROS प्लस ROS ट्वाइस ऑफ एंगल ROS प्लस एंगल POS एज इट इज। We have to calculate the value of angle ROS। केवल ROS की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें ROS की, तो POS को शिफ्ट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। देन एंगल SOQ माइनस एंगल POS इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ROS। 2 डिवाइड में भेज दीजिए। दिस इंप्लाइज 1/2 एंगल SOQ माइनस एंगल POS इज इक्वल्स टू एंगल ROS। यही रिजल्ट है जो हमें प्रूफ करना है। आप चेक कर सकते हैं एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल SOQ माइनस एंगल POS। इट वाज द क्वेश्चन ऑफ 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज। The question number 6 is, it is given that angle XYZ equals to 64 degree. Question number 6, angle XYZ, the value of angle XYZ is 64 degree. It is given that and XY is produced to P. If XY is produced to P, XY को प्रोड्यूस कर दिया, what is the means? XY को जो XY को प्रोड्यूस किया है P पॉइंट तक, it means PYX is a line। क्या हो गई? ये एक लाइन हो गई है। Draw a figure for this information
That language they have told. According to that, we have to prepare the figure which already we have prepared. If ray YQ bisect angle ZYP, ZYP को एक रे है जो बाइसेक्ट कर रही है, ये वाली रे है आपकी YQ, जो एंगल ZYP को, इस एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है. हमने दोनों को क्या लेट कर लिया, इनको x लेट कर लिया है. देन व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना है एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, here एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री गिवन है ये, और एंड रे YQ bisect angle ZYP. This implies angle ZYQ equal to angle QYP equals to x. ये दोनों एंगल इक्वल हैं, हमने दोनों क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया. स्टूडेंट, एज PYX इज ए लाइन, जब ये लाइन है तो इन एक लाइन के ऊपर सम क्या होता है एंगल्स का, 180 डिग्री. एज PYX is a line, then angle XYZ plus ZYQ plus angle ZYP is equals to 180 degree. Angle XYZ plus angle ZYQ plus angle QYP is equals to 180 degree. The value of angle XYZ क्या वैल्यू है, 64 डिग्री. ZYQ की वैल्यू x, QYP की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. दिस इंप्लाइज 64 को शिफ्ट कर सकते हैं राइट साइड एंड x प्लस x, 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 64. दिस इंप्लाइज 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 64, 116. Then the value of x is 116 upon 2, that is 58. We have to find, what we have to find in this question, angle XYQ की वैल्यू फाइंड करनी है. ये एंगल, the value of angle XYQ 64 plus x. Angle XYQ is equals to 64 plus x and the value of x is 58. ऐड कर दीजिए दोनों को, आंसर आ गया आपका. एंगल XYQ की वैल्यू क्या आ गई है, 122. And the value of, we have to calculate the reflex angle QYP, and reflex angle QYP, किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स निकालने जा रहे हैं तो उसको ऑलवेज यू विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 360 डिग्री, बिकॉज what is the definition of reflex angle, which already have told in the beginning of this exercise. An angle which is more than 180 and less than 360. जो एंगल 180 से ज्यादा होते हैं और 360 से कम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल. तो जब भी आपको रिफ्लेक्स एंगल कैलकुलेट करना है किसी भी एंगल का, तो उसको 360 में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको. तो रिफ्लेक्स एंगल QYP इक्वल्स टू 360 माइनस एंगल QYP इज इक्वल्स टू 360 माइनस QYP. द वैल्यू ऑफ एंगल QYP x, और x की वैल्यू क्या आई है, 58 आई है. तो यहां क्या आ जाएगा, 58 माइनस कर दीजिएगा, 360 माइनस 58, 302. आंसर आ गया है आपका इस क्वेश्चन नंबर 6 का. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कमिंग एक्सरसाइज. बिफोर दैट some important terms which I am going to explain to you, which is related to coming exercise 6.2. Firstly, what is transversal? Transversal. If two or
more lines transversal if a line intersect two or more lines are called ट्रांसवर्सल। आपकी दो लाइंस हैं, वन इज L, अनदर इज M। ये दो लाइन है L और M, और एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है टू डिफरेंट पॉइंट P एंड Q पर। एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो दो डिफरेंट लाइन L और M को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्सल। नाउ I am going to explain various type of angles. Suppose these are two lines L and M and a transversal intersect these two lines at two points P and Q. Then 8 angles are formed. Angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, angle 7 and angle 8. कितने एंगल बन रहे हैं? 8 एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पर if these two lines are parallel, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, if L is parallel to M, then first angle corresponding angles क्या होता है? corresponding angles में क्या होता है? सेम साइड होने चाहिए, जैसे 4 8 के इक्वल होगा, 3 7 के होगा, 2 6 के होगा और 1 5 के होगा, इक्वल होगा। दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर्स आर क्या क्या हो जाएंगे इनके पेयर्स? 4 8 हो जाएगा एक पेयर, दूसरा 3 7 के हो जाएगा, एंगल 3 7 का पेयर के साथ होगा, एंगल 6 2 के पेयर के साथ होगा, एंगल 2 के साथ होगा एंगल 6, और एंगल 1 के साथ होगा, एंगल 1 के साथ होगा एंगल 5। सेकंड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? सो पेयर्स आर अल्टरनेट इंटीरियर, मतलब दो पैरेलल लाइन के अंदर जो आते हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर होंगे 3 5 के साथ होगा और 2 8 के साथ होगा। ऑलवेज ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल 2 किसके इक्वल होगा? 8 के, और एंगल 3 किसके इक्वल होगा? 5 के। पेयर्स आ गए हैं आपके, 3 का पेयर्स 5 के साथ होगा और एंगल 2 का पेयर 8 के साथ होगा। नेक्स्ट, थर्ड, अल्टरनेट एक्सटीरियर। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे? एक्सटीरियर एंगल्स मींस लाइन, पैरेलल लाइंस के बाहर। 4 6 के इक्वल होगा और 1 7 के इक्वल होगा। तो पेयर्स क्या आ गए हैं? पेयर्स आर क्या क्या आ गए हैं? पेयर 4 6 के होगा, एंगल 4 का पेयर 6 के साथ होगा, और एंगल 1 का पेयर एंगल 7 के साथ होगा। एंड लास्ट, फोर्थ, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, we can say the other name is allied angle और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड कह सकते हैं। इसमें क्या होगा?
पैरेलल लाइन के अंदर सेम साइड दोनों का सम क्या होगा, ऑलवेज 180 होगा। इसमें क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 8 क्या होगा, 180 होगा। सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 5 भी क्या होगा, 180 होगा। अप टू हियर स्टूडेंट्स, व्हाट यू विल डू, revise these different types of angles, write in your fair notebook and do practice of such type of example which are given, which are related to these various type of angles. Up to that, thank you, have a good day.